Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dhori. Now I am going to start a lesson. The name of the lesson is In the Kingdom of Fools, and the writer is A.K. Ramanujan. So first three paragraphs described in first part of my video, and this one is the second part of my video of this lesson. So here in a village, in a city, there are people, and among the people there are king and the minister. And the king and the minister were different of another king of the minister of the state. They decided to do something different, and they thought the work of the days will be done at the night, and the works of the night will be done in the daytime. And they have planned, and according to their plan, they made the situation. And in the meantime, there came a guru and a disciple. And guru and disciple, when came, they saw that in the daytime there were nobody on the way in the city, and they became surprised. And when in the evening time came, and all the people came and all the shops opened, then they were very much hungry. Then they decided to buy something vegetables, and when they came, they saw that everything were available in 1 rupee, and they became very happy. Then the guru thought, when they were eating their food, the guru thought something different is there, and if something mishappening will be there if they will stay there. Then he advised the disciple to leave the place. But the disciple became very much happy as everything were available within 1 rupee. And the guru told, if you want to stay, you can stay, but I leave the place. And the guru left the place. Now now this one is after that. Next paragraph. One bright day, a thief broke into a merchant's house. एक उज्जवल दिन में क्या हुआ, एक चोर घुस गया एक व्यापारी के हाउस में. He had made a hole in the wall. तो दीवार में एक गड्ढा बनाए, होल बनाए, छेदा बनाए, and sneaked it. और उसमें moved very secretly. And as he was carrying out his loot, और जब वो घर में सब चीज चोरी करके जब वो छेदा के अंदर, होल के अंदर, सेंध के अंदर से बाहर निकल आ रहे थे, the wall of the old house collapsed. तो उतना समय में जो दीवार है वो दीवार गिर गया और उसका ऊपर, on his head, उसका माथा पे, and killed him on the spot. और वो चोर उस जगह पे ही मर गया. His brother ran to the king and complained. उसका भाई राजा के पास दौड़ के आए और कंप्लेन किए. Your Highness, बोले हुजूर, सरकार, when my brother was pursuing his unseen trade, जब मेरा भाई क्या कर रहा था, pursuing means here doing, पीछा कर रहा, तो doing his unseen trade, उसका काम कर रहा था, a wall fell on him, एक दीवार उसके ऊपर गिर गया, and killed him, और उसको हत्या कर दिया. This merchant is to blame. अभी क्या है, मर्चेंट को क्या किया जाएगा, ब्लेम किया जाएगा, अपराधी साब्यस्त किया जाएगा. He should have built a good strong wall. उसको बहुत ही अच्छा दीवार, शक्तिशाली दीवार बनाना चाहिए था. You must punish the wrongdoer. तो जो गलत किया उसको पनिशमेंट, सजा देना चाहिए. And compensate the family for the injustice. और वो जो अन्याय किया है उसके लिए उसको क्षतिपूर्ण होना चाहिए. Compensate means money paid due to loss. नेक्स्ट पैराग्राफ. द किंग सेड, तो राजा ने बोले, जस्टिस विल बी डन, बोले कि न्याय विचार होगा. डोंट वरी, बोले विघ्न होने का कोई कारण नहीं है, घबराना नहीं. एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस. समन मींस कॉल्ड, समन कॉल्ड फॉर, बुलाया. तो बुलाया गया इसको, जो वो घर का जो मालिक है वो मालिक को. व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब मर्चेंट आया, व्यापारी आया, The king questioned him. तो राजा ने उसको प्रश्न पूछा, What's your name? बोले तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. बोले हुजूर मेरा नाम ये है. Were you at home when the dead man burgled your house?
बोले जब वो जो आदमी मर गया, वो जो सेंध लगाया था, तब आप घर में थे? यस माय लॉर्ड। बोले हाँ हुजूर। ही ब्रोक इन एंड वो घुसा था एंड द वॉल वाज वीक, और जो दीवार था वो दीवार कमजोर था। इट फेल ऑन हिम, तो दीवार उसके ऊपर गिर गया। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, तब क्या क्या आरोपी अपना अपराध स्वीकार करता है यहाँ पर। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तो आपका जो दीवार है ये आदमी का भाई के ऊपर गिर गया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तो आपने एक आदमी को मर्डर कर दिया। वी हैव टू पनिश यू, आपको सजा मिलेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, तो असहाय व्यापारी बोले कि हाँ हुजूर, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, बोले आई डिड नॉट पुट, बोले जो वो दीवार ना मैंने नहीं बनाया था। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, तो उसी का दोष है जो वो दीवार बनाया था। He did not build it right, वो सही ढंग से दीवार को नहीं बनाया था। You should punish him, तो आपको उसको सजा देना चाहिए। Who is that? बोले वो कौन था? My lord, this wall was built in my father's time, बोले हुजूर ये जो घर का दीवार है ये मेरा पापा का समय में बनाया गया था। I know the man, जो बनाया था वो आदमी को हम जानते हैं। He is an old man now, अभी वो बूढ़ा हो गया। He lives nearby, वो नजदीक में ही रहता है। The king sent out messengers to bring the bricklayer, तो राजा किया कि अपना दूत को भेजे, वो जो मैसन है राजमिस्त्री है उसको बुलाने के लिए। Who had built the wall, जो दीवार बनाया था। They brought him, वो लोग उसको लेके आए। Tied hand and foot, हाथ में और पैर में बांध के उसको बुलाए लेके आए। You there, did you build this man's wall in this father's time? बोले कि अच्छा आप ही ने ये दीवार बनाया था इसका पिता का समय में। Yes my lord, I did, बोले हाँ हुजूर मैंने ही बनाया था। What kind of wall is this that you built, बोले किस प्रकार का दीवार आपने बनाया था। It has fallen on a poor man, बोले गरीब आदमी का ऊपर ये गिर गया and killed him, और उसको हत्या कर दिया। You have murdered him, आपने उसको मर्डर कर दिया। We have to punish you by death, तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, तो जो घातक है उसको हत्या करेंगे, मर्डर करेंगे, उसको आदेश देने से पहले द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो ब्रिकलेयर क्या कि ब्रिकलेयर मैसन राजमिस्त्री, तो राजमिस्त्री उसको अन्याय विनय के अनुरोध किए। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, बोले आप आदेश देने से पहले मेरा बात सुनिए। इट इज ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, बोले ये सही है मैंने ये दीवार को बनाया था। एंड इट वाज नो गुड, लो इसमें कुछ दोष नहीं था। बट दैट वाज बिकॉज माय माइंड वाज नॉट ऑन इट, लेकिन ये कारण है कि मेरा जब दीवार मैंने बना रहा था तो उसमें मेरा मन नहीं था। आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, तो मैंने बहुत अच्छा से याद कर रहा है एक लड़की जो डांस कर रही थी। Who was going up and down that street, वो खाली आना जाना कर रही थी वो रास्ता से all day, पूरा दिन भर, with her ankles jingling. Ankles means a kind of ornament, pile, jingling means rattling, झंझनाते हुए, तो अपना पायल झंझनाते हुए वो दिन भर उसमें आना जाना कर रही थी। And I could not keep my eyes or my mind on the wall, तो मेरा जो मन है मेरा जो आँख है मैंने दीवार में लगा नहीं पा रहा था। I was building, जो दीवार मैंने बनाया था। You must get that dancing girl, आप वो डांसिंग जो लड़की है नाचती हुई उसको बुलाना चाहिए। I know where she lives, मैंने जानते हैं वो कहाँ रहती है। You are right, बोले हाँ आपने तो ठीक बताया। The case depends, तो मामला गंभीर हो जाता है। We must look into it, हम लोग को अवश्य इसको देखना चाहिए। It is not easy to judge such complicated cases, ये केस बहुत ही जटिल हो गया, तो complicated means tough, जटिल, तो इसका समाधान इतना जल्दी से नहीं होगा। Let's get that dancer, वो डांसर को भी बुलाना चाहिए। Wherever she is, जहाँ पर वो हो। The dancing girl, तो नाचते हुए लड़की, now an old woman, अभी वो बूढ़ी हो गई है, came trembling to the court, तो कांपते हुए, trembling means shivering, कांपते हुए वो औरत आई है। Did you walk up and down that street many years ago, बोले ये रास्ता से आप बार बार आना जाना कर रही थी बहुत साल पहले। While the poor man was building a wall, जब ये आदमी बेचारा दीवार बना रहा था। Did you see him, आप देख पा रहे हो उसको। Yes my lord, बोले हाँ हुजूर। I remember it very well, बोले हाँ मेरा याद है बहुत अच्छा से। So you did walk up and down,
अच्छा, तो आप इधर आना जाना कर रहे थे बहुत बार विथ योर एंकल्स रिंगिंग, आपका जो पायल है वो पायल को झुनझुनाते हुए। यू वर यंग, बोले आप तब युवा थी, एंड यू डिस्ट्रक्टेड हिम, और आपने क्या किए उसको डिस्टर्ब किए। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसीलिए वो खराब दीवार बनाया। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बार्गलर एंड किल्ड हिम, तो ये दीवार गिर गया एक बार्गलर के चोर के ऊपर और चोर को हत्या किया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तो आपने एक निर्दोष आदमी को हत्या किया, निर्दोष आदमी को हत्या किया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तो आपको हाँ सजा दे दिया जाएगा। सी नेक्स्ट पैराग्राफ, सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, एक मिनट वो सोची और बोली माय लॉर्ड, बोले हुजूर, वेट, बोले आप रुकिए, इंतजार कीजिए। आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, बोले अभी मेरे को याद आया क्यों मैंने वो रास्ता से बार बार आना जाना कर रही थी, दैट स्ट्रीट, वो रास्ता से। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ, तो मैंने कुछ दिया था, कुछ सोना दिया था सोनार को, टू मेक सम ज्वेलरी, तो कुछ अलंकार बनाने के लिए, to make some ज्वेलरी, अलंकार कुछ बनाने के लिए। He was a lazy scoundrel, ज्वेलरी ऑर्नामेंट आभूषण बनाने के लिए। Scoundrel means rascal, वो अधम है, दुष्ट है। तो he was a lazy scoundrel, तो जिसको बनाने दिए थे सोनार को वो बहुत ही रॉब था, दुरात्मा था, पाजी था। He made so many excuses, वो बहुत ही बहाना बनाया था। Said he would give it now and he would give it then, बोले कि हाँ अभी देंगे, अभी थोड़ा देर बाद देंगे, and so on all day, तो पूरा दिन भर वो मेरे को परेशान किया, मेरे को नहीं दिया। He made me walk up and down, तो वो हमको मेरे को आना जाना करवाया। So his house a dozen times, उसके बाद घर आए गए, तो इस तरह 12 बार ही डजन टाइम मेरे को करना पड़ा। That was when this bricklayer saw me, तो इसी प्रकार में जो दीवार बनाने वाला मेरे को देखा था। It is not my fault, ये मेरा दोष नहीं है, my lord, मेरा भगवान, it is the damned goldsmith's fault, तो ये दुष्ट जो सोनार है वो सोनार को दोष था। Poor thing, she is absolutely right, बोले कि हाँ ये तो बहुत ही सही बोली है। Thought the king, राजा ने सोचा, weighing the evidence, ये जो प्रूफ है, ये प्रमाण को विचार करते हुए, we have got the real culprit at last, बोले हाँ राजा मंत्री ने बोला कि हाँ ये प्रकृत रूप में जो दुष्ट है उसको हम लोग को समझ में आ गया। गेट द गोल्डस्मिथ, बोले गोल्डस्मिथ को बुलाइए, सोनार को। wherever he is hiding, जहाँ पर वो छुपे हुए हैं उसको बुलाइए, at once, अभी बुलाइए। The king's bailiffs searched for the goldsmith, bailiffs means law officer, कानून अधिकारी, तो राजा का जो कानून अधिकारी है, ऑफिशियल्स है, उसको सोनार को बुलाने गए। Who was hiding in a corner of his shop, तो अपना दुकान का एक कोने में जो छुपे हुए थे। When he heard the accusation against him, जब वो सोने की उसके ऊपर चार्ज किया गया, he had his own story to tell, तो उसका अपना जो कहानी है उसको बोलना पड़ा। My lord, he said, बोले हुजूर, I am a poor goldsmith, बोले मैंने एक गरीब सोनार है। It is true, I made this dancer come many times to my door, तो ये सही है कि ये डांसर को मैंने बहुत ही बार आना जाना करवाया। I gave her excuses, मैंने बहाना बनाया। Because I could not finish making her jewelry, लेकिन वो जो ज्वेलरी सोना का चीज बनाने दिए थे उसको मैंने बना नहीं पाया था। Before I finished the rich merchant's orders, तो वो जो धनी मर्चेंट का ऑर्डर था, व्यापारी का आदेश था, वो आदेश का काम जब तक खत्म नहीं हो रहा था तब तक उसको मैंने दे नहीं पा रहा था। They had a wedding coming, तो वो लोग को एक शादी में जाना था, and they would not wait, वो लोग को इंतजार नहीं कर पा रहा था। You know how impatient rich men are, आप तो जानते ही हैं, impatient माने अधैर्य, impatient माने fickle minded, अधैर्य, कितना अधीर है जो धनी आदमी, जो अमीर आदमी है। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, बोले कि ये रिच मर्चेंट कौन है जो ये जो जिसका काम आप कंप्लीट कर रहे थे इतना ध्यान से। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसको जाइए और लेके आइए। which distracted this bricklayer, जो ब्रिकलेयर को ये उसको बाधा डाले। which made a mess of his wall, जो
जी जो अच्छा से दीवार नहीं बना पाया, which has now fallen on the innocent man, जो दीवार एक तो निरपराध आदमी का ऊपर गिर गया and killed him, और उसको हत्या कर दिया. Can you name him? क्या आप उसको नाम बता सकते हैं? Next paragraph. The goldsmith named the merchant. Goldsmith वो merchant का नाम बताया, and he was none other than the original owner. तो वो कौन है? जो ओरिजिनल ओनर है, जो रियल असली ओनर था, मालिक था, वो ही मालिक ही था of the house whose wall had fallen, जिसका दीवार गिर गया था. Now justice had come full circle. अभी जो न्याय विचार कैसे आ गया? फुल सर्कल में, लास्ट लिमिट, अंतिम सीमा पर आ गया है. Brought the king back to the merchant when he was rudely summoned. जब उसको rudely, roughly, निर्दयता पूर्वक उसको बुलाया गया. Back to the court, कोर्ट में. He arrived crying, तो रोते हुए आया. It was not me, बोले मैंने नहीं, but my father, लेकिन मेरा पिताजी को ऑर्डर द ज्वेलरी, जो ज्वेलरी को ऑर्डर दिए थे. ही इज डेड, तो वो तो अभी मर चुके हैं. आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ. सो अप टू हियर, दिस वन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ माई वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.